Good morning. Good morning, sir. Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Yep, good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. Okay. Good morning, sir. Yeah, good morning. Actually, there was a problem with connection with the cloud. I was facing some issue with the connecting to cloud. Yeah, just resolved it. Okay. Okay, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, I guess we can start. Okay, 134. So I guess we can start. Okay, I'll just share my screen. Let me know once you are able to see. Sir, only video is visible, sir. Not this screen. Okay, so my video is done. Okay, so Right. I'm just sharing my screen. You are able to Yes, sir. Visible. share. Okay, today's date 14th of December.
Okay, so in the last session, what we have discussed is we discussed about the types of securities. We discussed about the what are the types of assets we have, what are the types of security instruments we have in the capital market, which can be traded via any one of the trading platform which is provided by your broker. So here we can talk about as your application was from the broker or else it was from your one of the investment bank. So either way we can talk about, but generally if we talk about the investment bank, that is just having the reputation. So that's why we prefer generally. Anjali. So that's why we generally prefer that we should be talking about the trading application which is provided by one of the investment bank. So that's why we will be going with the one of the investment bank client, and for that investment bank client we will be testing a trading application. Now via that trading application, what are the securities can be traded, what are the securities I can buy, what are the securities I can sell, that security types we are learning right now. Now out of that we have talked about around 5 securities. Now let's talk about the sixth one as a mutual fund. Now, as we discussed earlier, what is meant by mutual fund? I guess we discussed something about this earlier. What is meant by mutual fund? It collects the funds from the public and invested in share market. Okay. In mutual fund, we don't that much know about the shares, so we give the particular amount every month or every set of months, and they will buy the funds. They will buy the shares behalf of us. Yes. So yes, that is correct. So as we don't have any insights about the stock market, as we don't have any insights about the derivative, I don't have any insights about the commodity, I don't have any insights about the forex market. So if I wanted to invest some kind of amount which I'm earning right now, that will be called as your investment. So if I'm investing this amount, why we are investing it? Any reason? For the benefits, To sir. get profit, For Yes. getting some profit. improve Okay. the capital. Low risk रहता है ना Yes, improve the capital is okay, but if I talk about individual, I don't have any capital, no. So what I meant is so in order to secure my future, I'm just investing some kind of a amount which I'm earning right now. So that is what Yes, the sir. main motto of your end user. So let's say I have a earning of around 20K. So out of that 20K, I'm saying that okay, 15K is my monthly expenses. This is not true, but still we can just talk about okay. So 15K is my monthly expenses, and 5,000 I can save for my future. So 5,000 I can invest in one of the bucket wherein I can get the maximum profit. Now we need to choose one of the funds which are available in the market, and out of that fund, we need to invest our money in that fund. Now this fund are nothing but what? So mutual funds, we will be having different asset management companies available in the market. What these people are doing, these people will be appointing one person as a fund manager for that particular fund. That fund size will be there either in 1 CR, 2 CR, 10 lakhs, or 100 CR, 200 CR. Likewise, the fund size will be there. Fund size is nothing but what your total money they have accommodated. Now that money, from how they are generating this money, so they will be collecting this money from different investors as per their particular proportional basis. Let's say I have 5,000, I can give the 5,000. Someone another person is having 10,000, he will be investing 10,000. Let's say again Vishal may be having around 20K, so he may be investing 20K. So likewise different investors will be coming together means they are not knowing each another, but they know that okay, this is the best fund which will be giving the potential return in the future. Now how do we come to know that ki, this is the fund which I can invest? For that also I need to have some study about the market. Yes, ठीक है, sir. हाँ, वो पैसा आगे जाके कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वो आगे जाके वो कर लेगा, बट इसी फंड में डालना है या ऐसे फंड की कौन से बकेट में डालना है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा क्या? Based on their ratings, sir. Based on their ratings. Okay, so Yes. you may be talking about कि ठीक है उसका रिव्यूज देखो, रेटिंग देखो. Okay, what Yes, else? What else? रिटर्न कितना दे रहा है सर? इंटरेस्ट कितना देख रहा है साल भर में इंक्रीमेंट? Yes, previous history of return, sir.
performance of that firm, how उसे they NAV कहते हैं Praveen ना and Prashant, you are Yeah. talking simultaneously. Praveen and Prashant, you are talking simultaneously, one person at a time. return कितना दिया है past में sir? उसके basis Oh. पे. And Sir, in on which their company they are performance. going to invest, in which sector they are going to invest. That is also important. Okay. So as we know that, हाँ ठीक है, this is the total fund size. Now this fund size, this particular amount, where they are investing, that also I can look for. कि हाँ ठीक है, IT में कितना डाला है, फार्मास्यूटिकल कितने डाला है, लेट्स से ट्रैवल में कितना डाला है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना डाला है, उसका प्रोपोर्शनेट हम लोग देख सकते हैं, उसका बाइफर्केशन भी. Yes, no. Yes, there sir. Okay. So I know that कि हाँ टोटल फंड साइज इज देयर, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टॉक में इतना है, इक्विटी में इतना है, डेरिवेटिव में इतना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना है, बॉन्ड्स में इतना है. तो ये हम लोग देख सकते हैं. So based upon that, again along with that, I can just identify what is the past performance of your company. ठीक है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लास्ट थ्री ईयर से कितना परसेंटेज दे रहा है, कितना एनुअल रिटर्न दे रहा है, कितना एब्सोल्यूट दे रहा है, कितना क्यूमुलेटिव दे रहा है, कितना एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है. तो ये रिटर्न हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि which fund is giving higher returns in the past. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंड का पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, कि हाँ इनका अभी तक रिटर्न कितना है, कितने से स्टार्ट हुआ था और कितने में एंड हो रहा है अभी, या अभी उसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है. तो लाइकवाइज जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ इक्विटी का जैसे प्राइस है TCS का 3 साल पहले 100 था, अभी 200 है, आया अभी 500 है. तो लाइक ठीक है, कंपनीज परफॉर्म वेरी वेल इन द मार्केट. लाइकवाइज वी कैन से, तो लाइकवाइज इन दिस फंड एज वेल. ठीक है, वो फंड साइज स्टार्ट हुआ था 10 CR से, बट वो 10 CR से स्टार्ट होने के बाद जिसने उस पर्टिकुलर फंड को परचेज किया था, एट दैट टाइम ही हैज परचेज एट सम प्राइस. वो प्राइस को हम लोग जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट एज, यहाँ पे लिखा है कि कहीं पे, हाँ, तो वी जनरली टॉक अबाउट दैट प्राइस एज NAV. तो जैसे हम लोग इक्विटी में सिक्योरिटी प्राइस होती है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हम लोग जो फंड परचेस करते हैं या फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड के लिए वी विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ यूनिट्स अलोकेटेड इन योर बकेट, एंड हर एक यूनिट का एक कुछ तो प्राइस रहेगा. उस प्राइस को हम लोग जनरली बोलते हैं NAV. तो NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू. NAV मतलब क्या है, नेट एसेट वैल्यू. मतलब क्या है कि लेट से आपका 50 CR का ये है, लेट से 50 CR का फंड है, तो हर एक फंड को हम लोग वो टोटल फंड को हम लोग एक नॉर्मल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट में हम लोग डिवाइड करेंगे, और हर एक यूनिट को हम लोग नाम देंगे कि हाँ इसका प्राइस क्या है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, 50 रुपीज है. तो ये 50 रुपीज से निकालो आप 50 CR का कितना निकलता है, उतने यूनिट्स मार्केट में है. तभी यूनिट्स मतलब हम लोग पहले इक्विटी में नंबर ऑफ शेयर्स बोलते थे, यहाँ पे हम लोग यूनिट्स बोलेंगे. इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आई विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ यूनिट्स अलोकेटेड इन माय बकेट इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000. लेट्स से एक यूनिट का प्राइस है 50 रुपीज, NAV है उसका 50 रुपीज. नाउ आई एम इन्वेस्टिंग 5,000. मेरे को कितने यूनिट्स अलोकेट हो जाएंगे मेरे अकाउंट में? 100. 500. राइट, पक्का? Yes, 100. Yes. एक यूनिट का NAV है 50 रुपीज, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5,000. आई एम इन्वेस्टिंग 5,000 इन दैट पर्टिकुलर फंड साइज. उसका फंड साइज जो है वो जाने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, बट मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आज का उसका NAV है 50 रुपीज. तो मेरे को कितने यूनिट्स आ जाएंगे उसके? 100, sir. 100. ओके, 100, करेक्ट. So 100 units will be allocated in my bucket. अभी ये जैसे ये आपका लेट्स से मेरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, बट जैसे जैसे वो फंड, अभी फंड कैसे ग्रो होगा उसका, अभी मेरा 5,000 और बाकी लोगों का बहुत सारा पैसा, ये मिला के उसने 5 CR जो है उसका टोटल फंड साइज जो भी है 5 CR या 50 CR या 500 CR, तो उसने ये 500 CR जाके कहीं इक्विटी में लगाया, कहीं डेरिवेटिव में लगाया, कहीं हमने ऊपर देखा था बॉन्ड है, कहीं कमोडिटी है, कहीं पे फॉरेक्स मार्केट है, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा सा उसने लगाया. अभी ये लगाने के बाद वो भी कुछ रिटर्न देंगे, उसके इन्वेस्टमेंट आगे जाके कहीं ना कहीं उसको रिटर्न देंगे. यस. Yes, sir. So Obviously. if it is giving the returns to that particular fund manager, that means automatically उसका फंड साइज ग्रो हो रहा है. Right, Yes, sir. sir. यस, नो? Yes. Yes. अगर उसने रिटर्न अच्छा सा दिया, लेट्स से उसका 50 CR था और उसका रिटर्न अच्छा से आया और एक 1 CR का बढ़ गया, तो 51 CR हो गया. यस, नो? Correct, sir. ओके. नाउ इन दिस केस अभी 51 CR के हिसाब से अभी भी यूनिट्स अपने उतने ही है या यूनिट्स बढ़े अपने? No, sir. और They यूनिट्स are मार्केट fixed. में जितने थे उतने ही है. यस, नो? Correct, Yes, sir. yes. ओके. तो अगर यूनिट्स उतने ही है और आपका टोटल कैपिटल या टोटल फंड साइज अगर बड़ा है, तो आप मुझे बताओ हर यूनिट का प्राइस बढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. तो आपका NAV NAV क्या बढ़ेगा. था पहले? NAV आपका क्या था? 50 रुपीज। अभी एक शेयर जो बढ़ा है वो एक शेयर हर जितने यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर में बटेगा। दैट मीन्स आपका अभी देखो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू NAV इज इक्वल टू योर फंड साइज। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू NAV इज इक्वल टू योर फंड साइज। अभी फंड साइज आपका बढ़ गया because of profit earned by the different investments which are done by the fund manager. Your fund size has grown. So as your fund size is grown, automatically you can say that number of units are constant, so your NAV will start increasing. जैसे जैसे NAV increase होगा, let's say 50 का 60 हो गया, तो आपके अकाउंट में कितने यूनिट्स थे? 100 यूनिट्स वेर देयर। तो अभी 50 का 60 हो गया यूनिट्स, मतलब हम लोग को अभी कितने प्रॉफिट में है या कितना है? Profit में sir. Profit में. Profit ये में 50 रुपीज था, मेरा अभी 60 रुपीज हो गया। तो अगर मैं आज ये इसको क्लेम मारता हूँ, ये पर्टिकुलर यूनिट्स में क्लेम करता हूँ, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? अराउंड 6,000. ओके। तो ये 6000 ठीक है। अभी इसमें भी टैक्सेशन वगैरह लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारा चीजें होती है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑन हाई लेवल कि ठीक है, मैंने 50 रुपीज में इन्वेस्ट किया था, अभी उसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का कुछ तो रिटर्न आ रहा है, जिसके वजह से उसका फंड साइज बढ़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फंड साइज इंक्रीज इन द फंड साइज, ऑटोमेटिकली माई NAV विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे आपका NAV इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके रिटर्न अच्छे होंगे। तो लाइकवाइज अगर आपका NAV 60 रुपीज हो जाता है तो आपका एक यूनिट के पीछे आप 10 रुपीज कमा रहे हो। अभी जैसे ही अभी देखो मैंने लास्ट मंथ में किया था, अभी ये मंथ में अगर इसको मैं क्लेम करता हूँ तो मैंने 5000 इन्वेस्ट किया था, आज के डेट में मुझे कितना मिल रहा है? 6000, राइट? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. yes, sir. एग्री Yes, कर रहे हो sir. सब लोग? सो म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता कैसे है? दिस इज द वे, दिस इज द बैकग्राउंड विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड सेइंग दैट कि हाँ ठीक है, आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है? दिस इज द वे इट इज इंक्रीजिंग। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes. तो नाउ मैंने बताया ठीक है। तो इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आई विल बी हैविंग, हाँ अभी अपने को क्या है कि इफ आई एम द इन्वेस्टर, इफ आई वांटेड टू इन्वेस्ट माय मनी, आई जस्ट नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बेसिक एनालिसिस कि विच फंड इज गिविंग मैक्सिमम रिटर्न्स। तो ऑलवेज अपने को जाके देखना कि विच फंड इज गिविंग मैक्सिमम रिटर्न्स एंड व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट। लेट्स से व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट इज नथिंग बट कि हाँ ठीक है, मुझे रिस्क कितना पसंद है। लेट्स से हर एक बंदे का अपना अपना हिसाब से होता है कि लेट्स से इफ आई से दैट कि हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कम से पैसे से इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा भी रिटर्न आया तो चलेगा, बेटर देन FD मिला तो भी चलेगा। अभी FD में कितना मिलता है? लेट्स से 6% मिलता है। तो अभी वही 6% अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाके डालता हूँ, कोई भी लिक्विड फंड में डालता हूँ या कहीं पे भी डालता हूँ, तो मुझे मिनिमम 10% रिटर्न मिलने वाला है। तो बस मुझे इतना स्टडी करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, कि मेरा लेट्स से कितने दिन के लिए मुझे रखना है पैसा, कितने दिन के लिए रखना है, व्हाट इज माय एस्पिरेशन, मेरा रिटर्न्स कितना एक्सपेक्टेड है और मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर मेरा रिस्क टेकिंग हायर साइड है तो दैट मींस आई कैन गो इन एग्रेसिव फंड्स। तो मैं एग्रेसिव में जाके डाल सकता हूँ कि ठीक है, रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, तो मुझे मेरा माइंडसेट वैसा है तो वी कैन गो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं भाई, मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है, मुझे मेरा पैसा सिक्योर्ड चाहिए प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला तो भी चलेगा, तो अगर ऐसे बोलते हो तो आप लोअर साइड जा सकते हो, या जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा लिक्विड फंड मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसे फंड में हम लोग डाल सकते हैं। तो लाइकवाइज डिपेंड्स अपॉन योर aspiration, we can invest in different mutual funds. For that purpose, at least we should be having some kind of a study in the market, कि आपको मार्केट में जाके स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखो, वो कितना आज तक रिटर्न दिया है, कितनी बार अप गया है, कितनी बार डाउन गया है। ठीक है, जब पूरा मार्केट ही डाउन चल रहा है तब वो सभी फंड्स नीचे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो अरे ये क्यों नीचे गया, वो तो जाने वाला है, मार्केट पूरा नीचे गया तो वो भी जाएगा नीचे, राइट? तो लाइकवाइज, क्योंकि देखो एनीवे आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, ये म्यूचुअल फंड में आपने उसके हाथ में दिया है, आप उसको जाके नहीं पकड़ सकते, वो बोलेगा मेरे पास पैसा थोड़ी है, वो पैसा कहाँ पे गया, मैंने जाके किसी डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाया, वो सिक्योरिटीज अगर नीचे जा रही है तो मैं क्या करूँ, राइट? तो अगर वो सिक्योरिटीज नीचे जा रही है तो ऑटोमेटिकली आप अगर अभी देखोगे ये लास्ट 2 वीक से या 3 वीक से आप अगर आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो अगर है, तो आप अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, पूरा मार्केट डाउन चल रहा है, इंडाइसेस डाउन चल रहे हैं, तो आपने जितना भी कोई भी फंड में लगाया तो आपका अभी वैल्यूएशन नीचे गया है। क्यों नीचे गया है? बिकॉज जो आपका NAV वैल्यू था, जो उसने इन्वेस्टमेंट आगे किया था, देखो ये एक फंड मैनेजर मैंने इन्वेस्ट किया लेट्स से एक्सिस ब्लू चिप में, अभी एक्सिस ब्लू चिप वाले ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, जाके TCS में डाला है, जाके इन्फोसिस में डाला है। अभी जहां पे उसने डाला है वो शेयर्स अगर नीचे जा रहे, वो शेयर्स भी अपने स्टॉक एक्सचेंज की वजह से नीचे जा रहे हैं, या बहुत सारे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूज कमिंग इन द मार्केट, जैसे अभी ओमिक्रॉन का न्यूज आया उसके वजह से मार्केट पूरा टूटा हुआ है। तो इन दिस केस अभी जैसे जैसे पूरा मार्केट नीचे जाने लगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फंड साइज है, मेरा जो वैल्यूएशन जो आगे आगे से रिटर्न जो आ रहे थे वो रिटर्न मेरे कम हो गए।
अगर वो रिटर्न मेरे कम हो गए तो मेरा ऑटोमेटिकली फंड साइज भी नीचे जाने लगेगा आज का वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर फंड साइज नीचे जाने लगेगा तो मेरे यूनिट्स उतने ही हैं, अगर यूनिट्स उतने हैं, फंड साइज नीचे गया तो ऑटोमेटिकली आपका एनएवी क्या होगा, वो भी नीचे जाएगा, राइट? यस नो? यस सर। Yes, sir. आपका नेट एसेट वैल्यू भी नीचे जाएगा। अगर नेट एसेट वैल्यू नीचे जाएगा और आप बोलते हो अरे यार नीचे जाने लगा, मैं उसको क्लेम मारता हूँ, तो अभी आपने 50 में इन्वेस्ट किया था, अभी आपका वैल्यूएशन क्या है, आज का वैल्यूएशन वो दिखा था आपको 4000। क्यों 4000 दिखा रहा है? बिकॉज -10 रुपीज में उसका एनएवी चला गया। क्यों एनएवी नीचे चला गया? बिकॉज वो फंड साइज का नीचे गया, फंड साइज नीचे गया। अभी ये फंड साइज क्यों नीचे गया? जहां पे उसने फंड इन्वेस्ट किए थे, वो इन्वेस्ट जहां जहां पे किए थे वो सब स्टॉक्स नीचे गए, या जो जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, वो सब स्टॉक्स मेरे नीचे गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज इम्पैक्टिंग टू आवर पोर्टफोलियो एज वेल। मेकिंग सेंस? क्लियर है सबको? Yes, sir. थोड़ा सा समझा म्यूचुअल फंड क्या है? Yes, sir. सर हम्म। सर मार्केट प्राइस की करंट जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो शेयर की, उसी हिसाब से एनएवी सेट होगा ना? क्वेश्चन थोड़ा ब्रेक हुआ था बीच में, फिर से रिपीट करो। सर मार्केट की वैल्यू मतलब अगर मार्केट डाउन है फिलहाल और फंड्स के या फिर शेयर जो भी शेयर्स है उसके प्राइसेस लो है, तो उसका एनएवी भी वैसे ही लो सेट होगा ना? जब अगर आई एम अ फर्स्ट कस्टमर, न्यू कस्टमर टू द मार्केट, एंड अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, अभी मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो एनएवी एकदम लीस्ट रहेगा किसी भी शेयर में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है। शेयर उसका में इन्वेस्ट प्राइस नहीं करोगे आप एक ही मिनट। आप जो शेयर में इन्वेस्ट करोगे वो इक्विटी मार्केट है, आप यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। हाँ सॉरी, म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो एनएवी सबसे लीस्ट रहेगा ना फिर? यस अगर यस, मार्केट डाउन चल रहा है तो नॉट श्योर कि सबसे लिस्ट रहेगा, बट नीचे रहेगा, इतना है। उसका मतलब कोई बेस वैल्यू नहीं है ना? बेस वैल्यू कुछ नहीं है, ये जाता रहेगा नीचे जब तक मार्केट कभी कभी कोलैप्स होता है तो पूरा नीचे चला जाता है, कभी कभी फंड डूबते भी है ऐसे भी। ओके। यस, बट अभी इन दिस केस क्या होता है, अभी जैसे अभी ये पॉइंट निकला इसलिए मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा नेगेटिव में दिखा रहा है, राइट? ये तो क्लियर है सबको? मेरा ओरिजिनल Yes. इन्वेस्टमेंट 5000 का था, वो 4000 दिखा रहा है, तो अभी इसको क्लेम मारना है क्या? No. No, sir. No sir. इसको क्लेम कब मारना है? इसको क्लेम कब मारना है कि मुझे लगता है कि ये भाई ऊपर नहीं आने वाला, ये सुधरने वाला नहीं है, ये पूरा नीचे ही जाने वाला है, तब जाके हम लोग मार सकते हैं। अभी ये कैसे पता चलेगा? ये म्यूचुअल फंड अभी आपको अगर फंड एडवाइजर ने आपको बताते हैं, या तो जनरली अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लानर है या जो भी है, तो आपको बता देगा कि भाई ये अभी नीचे नहीं, ये ऊपर नहीं आने वाला, ये इसको क्लेम करके सेटल मार दो, खत्म। कि 1000 डूब गया तो डूब गया, जाने दो, मतलब रिस्क है इसमें, दैट इज व्हाट। बट अगर हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है मेरे बड़े फंड है, उसमें कभी ऐसे उतार चढ़ाव आता रहता है, तो अगर मुझे क्या करना है जनरली इन दिस केस, अभी देखो एक्सिस ब्लू चिप इज अ बिग फंड, तो इसमें अगर कुछ भी डालो ऑटोमेटिकली 10-12% से ऊपर ही रिटर्न है। तो ये अभी 10-12%, व्हेन आई टॉक अबाउट 10 and 12%, दैट इज कंसिडरिंग योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंसिडर करता है ये। बाकी की जो अभी तक की आपकी सेविंग मोड है या जो भी इन्वेस्टमेंट मोड है आपके, they are not considering your inflation, they are not giving the cumulative interest, they are not giving the cumulative interest. Your particular mutual fund is the only thing which is giving the cumulative interest. Cumulative interest मतलब आपका जो पैसा अकोमोडेट हो रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर कुछ अकोमोडेट हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लाइकवाइज इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, दैट इज नथिंग बट cumulative interest. So this is the only thing we are getting the cumulative interest in this area. अभी जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है मेरा नेगेटिव चल रहा है और मेरा फंड बड़ा है, तो ना हो अपने को पता है कि एनएवी भी अभी 40 रुपीज मिल रहा है, तो मैंने जब इन्वेस्ट किया था तब कितना था? 50 रुपीज था। Yes, sir. 50 rupees. ओके, तो अभी का मेरा आप करंट वैल्यूएशन देखोगे तो आप बोल रहे हो सर मेरा नेगेटिव चल रहा है, ओके दैट इज फाइन। बट अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है वो करंट तो नेगेटिव है, मुझे पता है वो ऊपर आने वाला है, बिकॉज एनीवे वो मेरा जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे कंपनी में, तो वो एनीवे बढ़ने वाला है। तो अगर वो बढ़ने वाला है तो मुझे पता है कि अभी ये कितने पहले 50 मिल रहा था, अभी कितने मिल रहा है? 40 में मिल रहा है। तो कैन वी से दैट कि हाँ ठीक है दिस इज द गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस? यस Yes, yes. हाँ, yes. यस। तो इन दिस केस लेट्स से अगर पैसा आपका अगर एनीवे आपका कम में मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे पहले मैंने जब 50 में डाला था तब मुझे 100 यूनिट्स मिले थे, अगर मैं यहाँ पे 40 में डालता हूँ तो मुझे यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, मोर देन Yes, sir, 100 पक्का definitely. मिलेंगे, मोर देन Yes, 100 sir. पक्का More than मिलेंगे, 100. मोर Yes, देन sir. 100 मिलेंगे कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मोर देन 100 मिलेंगे तो ये मार्केट जब बढ़ेगा तो मुझे एनीवे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. Right, sir. Yes, sir. Right. So whenever market is going down, we have the investment opportunity. Keep in mind, whenever market is going down, कभी भी ऐसा मत सोचो कि मार्केट नीचे जा रहा है मेरे पैसे का क्या होगा. कुछ नहीं होता है. म्यूचुअल फंड में आप आग बंद करके जो भी डाले तो भी चलेगा. बट इतना है कि जस्ट थोड़ा सा सोच के डालो कि आपका एस्पिरेशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है और रिटर्न फैक्टर क्या है. वो सोच के आपको डालना है कि हाँ ठीक है, मेरा एनएवी क्या है करंट, आज तक उसका एनएवी क्या था, कितनी बार अप गया था, कितनी बार डाउन गया था, थोड़ा सा ग्राफ एनालिसिस करो. उसके बाद में हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं. अभी इसी में म्यूचुअल फंड में वी डू हैव 3 टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन. वन इज अ लार्ज कैप, अनदर इज अ मिड कैप एंड थर्ड इज अ स्मॉल कैप. तो अभी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप क्या है. तो कैप मतलब कैपिटल. तो कैप मतलब कैपिटल कि आपका लार्ज कैपिटल कंपनीज कौन कौन से है, मिड कैपिटल कंपनीज, या जैसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैपिटल फंड्स. तो स्मॉल कैपिटल फंड मतलब क्या है, ठीक है उनका फंड साइज कम रहता है. मिड कैप मतलब थोड़ा सा ज्यादा, लार्ज कैप मतलब बहुत ज्यादा. तो लाइकवाइज जैसे हम लोग बोलते हैं कि 500 सीआर 800 सीआर, तो ये लार्ज कैप में आएगा. उससे थोड़ा सा नीचे वाला मिड कैप में आएगा. उससे थोड़ा नीचे वाला स्मॉल कैप में आएगा. नाउ जस्ट टेल मी, रिस्क कहाँ पे ज्यादा है, रिटर्न कहाँ पे ज्यादा है. सर लार्ज कैप कैप में में रिटर्न ज्यादा ज्यादा है है. और रिटर्न भी ज्यादा है वहाँ पे. लार्ज कैप में क्या है, दोनों भी है सर. रिटर्न ज्यादा रिस्क भी है. ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा. ज्यादा रिटर्न ज्यादा कैप मध्ये नाही में आहे. स्मॉल कॅप मध्ये रिस्क ज्यादा आहे. स्मॉल रिस्क कॅप कम आहे. मध्ये रिस्क जास्त आहे sir. सो रिटर्न कॅप मध्ये ज्यादा आहे सर. कशामध्ये. लार्ज कैप में सर रिस्क भी ज्यादा रहेगा और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा. नाही, नाही लार्ज कॅप में रिस्क स्मॉल कॅप मध्ये लार्ज जास्त कैप रिस्क में यू में भी सेइंग कि हाँ मुझे कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता जाएगा, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा. बट कंपेयर टू यूर स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि वो फंड वोलाटाइल रहेंगे. तो स्मॉल कैप में आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, रिटर्न भी एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा ही मिल सकता है, बट रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है वहां पे. स्मॉल कैप में रिस्क फैक्टर ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में ऐसा डूबने के चांसेस कुछ नहीं है. स्मॉल कैप में मुझे पता नहीं है कि भाई ये थोड़ा सा फंड है, पता नहीं कहाँ पे चला गया, राइट. बट लार्ज कैप में क्या है, ठीक है भाई बड़े इन्वेस्टर्स है, इसमें कुछ ऐसा मतलब लिक्विडेशन का सवाल नहीं आएगा. लाइकवाइज वी एक्सपेक्ट. ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से आपको कहाँ पे डालना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. अनदर थिंग इज दैट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अपने को ये तो पता चला कि वन ऑफ द पर्सन, रिप्यूटेड पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल योर फंड्स इज कॉल्ड एज योर फंड मैनेजर. इंटरनली इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो कि ये ब्रोकर ही है, बट उसको बोलना नहीं है कभी भी कि ये ब्रोकर है, वो फंड मैनेजर है. दीज आर द रिप्यूटेड पोजीशंस अवेलेबल इन द मार्केट हु इज हैविंग अराउंड 20+ 30+ एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट एरिया. तो उनको पता है सब कुछ, जो अपने को कुछ भी नहीं पता है. उनका काम ही उतना है कि ये सब कुछ पता करना है और इन्वेस्टमेंट गोल अचीव करना है सब यूजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए. So that is what their role is there. So in this case, the whatever funds are available, those are provided by the different asset management companies. उनको ही हम लोग बोलते हैं कि हाँ different funds are available. The investment mode we have is one of the mode is we can invest in lump sum or we can invest in SIP. अभी most of the people may be aware about SIP. What is meant by SIP? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इन्वेस्टमेंट प्लान. Systematic investment planning क्या होता है? मंथली सर थोड़ा थोड़ा करके मंथली किंवा वीकली ईयर फिक्स अमाउंट मंथली पे करना पड़ता है. आरडी पता है सबको, आरडी यस सर. रिकरिंग डिपॉजिट पता है? यस सर. क्या होता है उसमें? हम मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं. मंथली 1000. मैं बोल रहा हूँ आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरे पास एक साथ पैसे ज्यादा नहीं आएंगे तो मैं 1,000 सेव करके रखता हूँ. तो दैट इज अ सेविंग मैकेनिज्म वी हैव, राइट. तो आरडी इज अ सेविंग मैकेनिज्म, इट इज अ सेविंग प्रोडक्ट बाय द बैंक. बट यहाँ पे क्या है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. आरडी इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, आरडी इज अ सेविंग मोड. तो अभी जस्ट कीप इन माइंड कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है. तो सेविंग जो हम लोग करते हैं, सेविंग मतलब हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा जो डेली का जो चल रहा है उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा के हम लोग वी डू some kind of save some kind of a money for our futures. That is a saving. And investment is what? Investment is nothing but we are saving that money in order to secure your future needs by investing in different stocks. तो आप जैसे आप बोलते हो कि हाँ म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. जैसे मैंने बोला कि हाँ इक्विटी में मैंने डाला है, टीसीएस इक्विटी में डाला है. तो टीसीएस इक्विटी में डाला है मतलब क्या है, मैंने टीसीएस में इन्वेस्ट किया है, मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, लेट टीसीएस रन देयर बिजनेसेस, उनका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, ऑटोमेटिकली मेरा पैसा बढ़ता रहेगा. So that is what we are just becoming a passive partner in their particular company. So likewise the investment modes are available. जैसे मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी डाला,
कि ठीक है मैंने एक फंड मैनेजर के हाथ में दिया, उसका जो ब्रोकरेज है वो काट के लेगा, ऑटोमेटिकली वो पैसे का मैनेज करता रहेगा, वो आगे जाके इन्वेस्ट करता रहेगा, उससे रिटर्न आता रहेगा, ऑटोमेटिकली मेरा एनएवी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे एनएवी बढ़ता रहेगा मैं एट सम सर्टेन पॉइंट मैं मेरा पैसा क्लेम कर लूंगा. So that is what the investment modes are available. So investment is nothing but we are investing some amount in particular market, in capital markets, wherein we expect some kind of a gains out of it. And gains we are expecting in order to secure your future needs. That needs can be anything. That needs can be anything. कोई बोलेगा रिटायरमेंट के लिए, कोई बोलेगा ठीक है ये चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए, कोई बोलेगा कुछ शादी करानी है, जो भी है. So different needs may be there. In order to fulfill that needs, we may be investing in different buckets. और वो bucket जो है अपने पास mutual fund is one of the bucket we have. Now out of this, let's say one of the businessman is there and he is getting a lump sum amount. Let's say उसको मिल रहा है कि हाँ ठीक है आपको lump sum मिल रहा है. lump sum मतलब क्या है, ठीक है आपके पास एक साथ 1 लाख रुपए आ गए. So what you will be doing, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट आई डोंट नो कि ये दिस इज माय रेगुलर इनकम और नो. तो मुझे पता है आज मिला है लेकिन 3 महीने के बाद मिलेगा नहीं, पता नहीं. तो आई एम अ बिजनेस पर्सन. तो इन दैट केस आई कैन इन्वेस्ट इन लमसम मोड. लमसम मतलब क्या, एक बार इन्वेस्ट किया खत्म, कि एक ही बार उसका परचेस करो. जैसे मैंने बोला 5000 का परचेस किया था, वैसे एक बार 1 लाख का परचेस कर दो. तो likewise we'll be investing only once in case of a mutual fund. That is what we call it as a lump sum investment. Now another type of investment we have is a SIP. So SIP is nothing but a systematic investment planning. So systematic investment planning is nothing but what we are investing in particular fund systematically by having some kind of a predefined rules. So investing in some particular funds by at regular interval. Let's say मैंने बोला है 10 तारीख या 5th of each month, अगर मैंने बोला तो 5th of each month को आपका let's say 1000 2000 जो भी है वो पैसा कटेगा और वहां पे जाके इन्वेस्ट होगा. कहाँ पे, वो फंड. उसके लिए आपको बैंक को मैंडेट रजिस्टर करके देना पड़ता है, तभी जाके बैंक से ऑटो डेबिट होना चालू होगा. दिस इज द वे वी आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसा है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसा एक साथ 1 लाख रुपए आने वाले नहीं है, मेरा सैलरी 20 के 30 के है, उसमें से मैं बचा के 2-4 हजार या 3000 1000 2000 जितना जम पॉसिबल है उतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो लेट्स से मुझे पॉसिबल है कि 3000 का मैं चालू करता हूँ, तो 3000 मुझे अगर एक फंड में डालना है तो एक फंड में, 3000 अगर मुझे अलग अलग फंड में डालना है तो अलग अलग फंड में. तो लाइक वाइज वी आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट proportions in different particular mutual funds. So in this case, let's say अगर मैंने 3000 का चालू किया और एक ही फंड में चालू किया, तो 3000 एक महीने डेबिट होगा, दूसरे महीने भी डेबिट होगा, तीसरे महीने भी डेबिट होगा. अभी ये मेरे से डेबिट होके क्या होगा, मेरे से डेबिट होके कहाँ पे जाएगा, वो म्यूचुअल फंड के साइज में जाएगा. अभी उसके फंड साइज में वो पैसा जाने वाला है. अभी वो पैसा उसके हाथ में जाने के बाद वो क्या करेगा, बैठा के लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे रखो, वो आरबीआई को देता हूँ, फिर वहां से इंटरेस्ट आएगा मैं इसको देता हूँ, ऐसे करेगा नहीं. दे विल बी इन्वेस्टिंग दैट मनी, पर्टिकुलर मनी. जैसे मैंने 3000 डाला है, किसी और बंदे ने भी डाला होगा, तो वो सब पैसा लेके वो लोग कहाँ पे जाके डालते हैं, वो जाके वो स्टॉक में डालेगा, कहीं डेरिवेटिव में डालेगा, कहीं कमोडिटी में डालेगा. दे विल बी इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बकेट्स, और वो डिफरेंट बकेट से जैसे जैसे उनका रिटर्न्स आता रहेगा या जैसे जैसे उनका वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिकली मेरा एनएवी साइज बढ़ता रहेगा. जो आपका एनएवी है, यूनिट का प्राइस है, वो प्राइस आपका बढ़ेगा. जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ेगा, आप अपना पोर्टफोलियो अगर देखोगे कि मेरा लास्ट मंथ 5000 था, अभी 5200 है. क्यों है 5200? क्योंकि लास्ट मंथ में आपका एनएवी था 50 रुपीज, अभी थोड़ा सा हो गया 52 रुपीज हो गया, राइट. तो 52 रुपीज हो गया तो 5200 या 52 या 50 जो भी है, जितना प्रोपोर्शन में मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. तो लेट्स से अगर आपका नेक्स्ट मंथ में आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, दैट मींस 5000 इन्वेस्टेड था, करंट मेरा वैल्यूएशन है 5200, दैट मींस आपने जिस एनएवी में लिया था वो एनएवी बड़ा है अभी. ये आपको समझ रहा है. अभी आप मुझे बताओ, इन दिस केस नेक्स्ट मंथ में भी मुझे जब मेरा 5000 डेबिट होगा तो मुझे कितने में मिलेगा, जो रिवाइज्ड एनएवी है उससे मिलेगा या पुराना एनएवी जो लास्ट मंथ में था उससे मिलेगा? न्यू वन. न्यू वैल्यू सर, न्यू लेटेस्ट है जो करंट है उसके हिसाब से मिलेगा. यस सर. तो एनएवी क्या है, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि लेट्स से एक महीने में मुझे 50 रुपीज से मिला, सेकंड मंथ में जब तक जा रहा हूँ तब तक 51 हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में मुझे जब यूनिट्स एलोकेट होंगे तो 51 से होंगे. थर्ड मंथ में मैं जा रहा हूँ 60 रुपीज हो रहा है, तो मुझे वहां पे यूनिट एलोकेट होते हुए ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होगी सर, ज्यादा- ऑब्वियसली अगर बढ़ा है तो. मेरा एनएवी बड़ा है बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही है. ये कम मिलेगा सर क्वांटिटी में. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे? वो तो कम मिलेंगे सर, नंबर वो तो कम मिलेंगे. यस, वो तो कम मिलेंगे बट आपका वैल्यूएशन ज्यादा दिखेगा, राइट. यस. ये क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे यही एग्जांपल लिख दिया है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड इज वन ऑफ द फंड, लार्ज कैप फंड, उसका एनएवी लेट से 50 रुपीज चल रहा है। तो जो यूनिट्स एलोकेशन है, अभी यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करते हुए क्या कर सकते हैं, ज्यादातर हम लोग टेस्टिंग करते हुए क्या कर सकते हैं कि हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने एलोकेट हो रहे हैं। जनरली अभी यूनिट्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इक्विटी में क्या है, हम लोग 1.5 शेयर्स मेरे आ गए अकाउंट में, ऐसे कभी बोलते हैं हम लोग 1.5 sir. शेयर मेरे अकाउंट में आ गए, ऐसे कभी No, बोलते हैं? No, sir. नहीं बोलते। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स वी मे बी गेटिंग यूनिट्स इन डेसिमल्स एज वेल। जैसे अभी यूनिट्स एलोकेटेड मैंने बोला 2,4, तो 2,4 मतलब बिफोर डेसिमल 2 डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स। तो यहाँ तक अपने को मिल सकता है। तो आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, करंट एनएवी है, उनका जो है कैलकुलेशन करके मेरा जो यूनिट्स एलोकेट होगा ये ऐसे डेसिमल्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये डेसिमल रिलेटेड हम लोग बाउंड्री वैल्यूज, ये इनपुट डोमेन टेस्टिंग जो भी है, some of the people may be knowing about it, तो वो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं while testing this mutual fund as well. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके तो यही दिखा है यहाँ पे, देखो वन एग्जांपल इज गिवन हियर। 1 लाख का मेरा फंड साइज है, लेट्स से एक फंड मैनेजर है, मेरा फंड साइज 1 लाख का है, और हमने मार्केट में कितने यूनिट्स दिए, 2000 यूनिट्स आर अवेलेबल। तो आउट ऑफ 2000 यूनिट्स मैंने सब्सक्राइब किया कितने यूनिट्स को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 10,000 का प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आई एम इन्वेस्टिंग 10,000। अभी इतना कम नहीं होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये दिया है। 1 लाख का टोटल फंड है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर अवेलेबल एज 2000, अभी का करंट वैल्यूएशन, ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। ओके तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर अवेलेबल एज 2000, मैंने अमाउंट सब्सक्राइब कर रहा हूँ 10,000 के लिए, आई एम इन्वेस्टिंग माई अमाउंट। इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर फंड, व्हाट इज द यूनिट्स आई विल बी गेटिंग, मेरे अकाउंट से क्या जाएगा, माइनस 10,000, मेरे अकाउंट से माइनस 10,000 होगा, डेबिट होगा। Yes, sir. यस, और मेरे अकाउंट में क्या आएगा, ये 10,000 के हिसाब से ये नंबर ऑफ यूनिट क्रेडिट होगा। हाँ, तो ये 2000 अगर है तो इसका ये क्या होगा, एनएवी क्या होगा, एनएवी क्या 50 होगा, रहेगा सर, 50 रहेगा ना? 50 सर। 50 पक्का? Yes, हाँ। sir. ओके 50 है, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 50 करो, कितना आएगा, 200 in it, sir. 200 तो आपके अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा, 200 200 units of units. fund. तो आपके अकाउंट में प्लस 200 यूनिट्स आ जाएंगे। Whenever there is a need, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, आपका एनएवी ज्यादा हो चुका है, 100 हो चुका है, तो आप इसको जाके क्लेम कर सकते हो। आप क्लेम करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर वो फंड के हिसाब से, वो टैक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स कट के जो भी है उसका फंड फीस, जो हम लोग बोलते हैं फंड मैनेजमेंट करने के लिए उसका फीस भी लेते हैं वो लोग, फीस वगैरह सब कुछ कनेक्शन कट करके अपने को जो अमाउंट देना है वो रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। लेट्स से आफ्टर 1 ईयर मेरा पोर्टफोलियो का अमाउंट है, मैंने एक ही बार इन्वेस्ट किया, ऐसे पकड़ के चलो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसआईपी, मैंने एक ही बार इन्वेस्ट किया, ऐसे पकड़ के चलो, तो आफ्टर 1 ईयर मेरा पोर्टफोलियो में दिखा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है और आपका आज का वैल्यूएशन 11,000 ऐसे दिखा रहा है। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द एनएवी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी। 55 पक्का? यस सर। Yes, sir. 55 रुपीज इज योर करंट एनएवी। आप अगर इसको जब लिया था तब आपने 50 में लिया था, अभी ये बेच रहे हो, अगर आप क्लेम करते हो तो ये 55 में उसको देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसका करंट वैल्यूएशन वो चल रहा है। ठीक है, and apart from this, one more suggestion, if you are starting investing in the mutual fund, I don't know, most of the people may be investing, but if you are investing, do invest for long term, do invest for long term, do not invest for short term। थोड़ा सा बचाओ बट लॉन्ग टर्म के लिए बचाओ, थोड़ा सा बचाओ बट लॉन्ग टर्म के लिए बचाओ, डू नॉट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ, अब अगर आपको कुछ काम नहीं है, ऑफिस नहीं कर रहे हो, खाली बैठे, तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ, ये करो वो करो, बट आई वुड सजेस्ट डू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट टू फॉर इक्विटी, that too for equity. Do invest for long term equity funds, do invest for long term equity funds, so that you can gain a more and more profit। वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव टू दिस, अभी देखो थोड़ा सा इसको देखते, थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करते हैं 5 मिनट के।
ठीक है, सो अभी इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से मैं 5000 का मैंने SIP लगाया आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में मैंने 2000 लेट्स से 2000 का SIP लगाया, मेरा साल में कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? 24,000 24,000 10 साल में कितना जाएगा? 2,40,000 20 years में 4,80,000. 4,80,000. Lump sum, I can say that I have invested around 5 lakhs in 20 years. Yes sir. Yes, sir. Right. So, Yes. so I have invested around 5 lakhs in 20 years. आपको ये दिखते हो अभी 1-2 हजार कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? बट इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म मतलब मैं बोल रहा हूँ 1-2 साल या 3 साल ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं मैं बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 10 years एटलीस्ट. 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. 30 years तक जाएंगे नहीं हम लोग. 10, 15, 20 ऐसे चलो, ठीक है. तो अभी ये 20 का पकड़ के चलते हैं, तो 20 years में आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड कितना? 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट मेरा जा रहा है. आग बंद करके आप किसी भी फंड में डालो, मैं बोल रहा हूँ आग बंद करके आप किसी भी फंड में डालो, मिनिमम अगर 10% भी रिटर्न आता है तो 5 लाख का कितना होगा क्यूमुलेटिव में? क्यूमुलेटिव में 5 लाख का कितना होगा? 3,000 yearly. सॉरी, एक अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट कंसीडरिंग मींस एक्चुअल कैलकुलेशन, बट हाई लेवल पे 20 lakhs around. मोर देन 50 होगा कि नहीं? Yearly 50. ईयरली 50K प्लस ही होगा सर, मतलब हाँ ठीक है, मतलब आई एम कंसीडरिंग ओवरऑल 20 इयर्स में कितना होगा? 5 लाख का कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? 20 लाख, 50 लाख, 15 to 20 lakhs. 15 lakh. 15 lakh. 15, 15. 15. यस 15 लाख प्लस ही होगा सर. हाँ मैं बोल रहा हूँ 15 लाख नहीं, मैं बोल रहा हूँ अराउंड 50 लाख तक जाएगा 50 तक. आप बोलोगे सर ये ऐसा, ये कौन सा कैलकुलेशन बैठा? ठीक है, तो अभी ये क्या है चीज बताता हूँ, देखो थोड़ा सा म्यूट पे जाओ. Galaxy. कोई वॉशरूम से जाके अटेंड कर रहा है क्या? सर गैलेक्सी A22. इतना भी तंग मत करो यार, इतना पेशेंस मत चेक करो मेरा. सर तुम कर दो ना म्यूट सर. आप ही कर दो म्यूट सर. सर आप ही कर दो मेरे. यस डन, ठीक है. तो हाँ अभी मैं जो बोल रहा था, ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मिनिमम आप आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड में डालो, वो 10% कंसिडर करके जा रहा है. ओके परफेक्ट. तो अभी 10% कंसिडर करके जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ 10% मिनिमल बोल रहा हूँ मैं. 20% देयर आर म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर गिविंग एब्सोल्यूट 25% रिटर्न. एब्सोल्यूट और एनुअलाइज में डिफरेंस है. तो अभी लेट्स से 20% है या 25% है, तो इसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपने को, अगर इतना जाओगे तो मैं बोल रहा हूँ 1 CR तक पहुंचोगे, उतने 2 लाख 2,000 की इन्वेस्टमेंट से भी. बट ठीक है, हम लोग मिनिमल लेके जाते हैं. ठीक है, मुझे पता है कि 5 लाख का एनीवे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एनीवे आप अगर एक दिन में आपके पास 5 लाख है क्या? No, sir. लमसम डालने के लिए नहीं एक दिन सर, में मेरे पास no 5 लाख है सर, क्या? नहीं. no. तो आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू आउट 20 years कि थ्रू आउट 20 years ठीक है भाई, आता जाएगा, थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा. तो लाइकवाइज दैट इज द वन ऑप्शन वी हैव. अनदर थिंग इज दैट लेट्स से 1 साल के बाद लेट्स से मेरा पोर्टफोलियो बन जाता है कितने का? लेट्स से आपका जो पोर्टफोलियो है 10,000 का है, मैंने इसी एग्जांपल में बात करो, 10,000 मैंने डाला था या 2,000 मैंने डाले थे, 24,000 था, वो 24,000 का अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में अराउंड 30,000 हो गया. तो अभी ये 30,000 जो हुआ है, ये अभी 30,000 ये आगे जाके इन्वेस्ट होने वाला है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 24 का, वो 24 इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, जो उसके ऊपर प्रॉफिट भी आया है वो भी आगे जाके इन्वेस्ट हो रहा है, राइट? यस नो एग्रीड? Yes. Sir. 24 प्लस 6, जो 6 का प्रॉफिट आया है, एज्यूम करके चलो हाँ, सब कुछ मैं जस्ट नंबर्स ऐसे ही ले रहा हूँ, मतलब एक्चुअल नंबर्स नहीं है. तो 24 प्लस 6, ये जो 30 के है वो भी आगे जाके इन्वेस्ट हो रहा है फंड में. अभी ये 30 के प्लस नेक्स्ट ईयर का मेरा 24 उसमें भी एड ऑन होगा. यस नो? राइट सर. Yes, sir. ओके. और ये पहला वाला 30 प्लस ये 24, ये मिला के जितना जा रहा है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो भी नेक्स्ट ईयर फिर से एड ऑन होगा आपके फंड साइज में. अगर ये आपका ऐसे ही वे से आपका एड ऑन होता जाएगा, आपका ओरिजिनल प्रॉफिट, एम आई ऑडिबल? यस Yes. Yes. Yes, sir. आपका ओरिजिनल प्रॉफिट प्लस आपका जो रिटर्न्स भी मिल रहा है वो भी एड ऑन होते जा रहा है, तो ऑटोमेटिक कैन आई से दैट माय आप क्या बोलते हैं उसको,
प्रिंसिपल जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली, हम लोग बैंकिंग टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, कि मेरा प्रिंसिपल है प्लस मेरा इंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे एक मैं कोरिलेशन दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल प्लस जो रिटर्न है उसको इंटरेस्ट बोलो, प्रिंसिपल प्लस रिटर्न इंटरेस्ट, ये मिला के मेरा जो टोटल लमसम अमाउंट बन रहा है वो फिर से ऊपर आगे जा रहा है, और वो आगे जाने वाले अमाउंट पे फिर से मुझे रिटर्न मिल रहा है। दैट मीन्स कैन आई से दैट कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस मेरा रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस रिटर्न प्लस उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। दैट मीन्स कैन आई से दैट मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यस सर, यस सर। कंपाउंडिंग तो हम लोग इसमें बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में हम लोग बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो लाइकवाइज ये पैसा बढ़ते जा रहा है। तो जनरली कंपाउंडिंग में क्या है कि जितने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रखोगे तो कंपाउंडिंग उसका ज्यादा जाएगा। वही 5 साल में आपने निकाला तो आप देखो उसका वैल्यूएशन बहुत कम दिखेगा, राइट? यस सर। ठीक है, इसका कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग कभी बाद में देख लेंगे, बट अभी इतना के लिए समझ लो कि हाँ, जितना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा भी करना है तो लॉन्ग रन के लिए करो, वो भी इक्विटी फंड में डालो। मतलब जो पैसा आपको नहीं चाहिए वो पैसा डालते रहो, ऑटोमेटिकली उसका फंड साइज बढ़ने वाला है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ अनदर थिंग इज दैट यही आप अपोजिट साइड आके ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जाओ। मैं एसबीआई में एफडी कर रहा हूँ या आरडी कर रहा हूँ, आरडी कर रहा हूँ या एफडी कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%, 7%, 8%, 9%, इससे ज्यादा है कुछ? नो सर, वो भी इन्फ्लेशन इतना ही है सर, मतलब। तो अभी आप मुझे पकड़ के चलो, ये 6%, 7%, 8%, अभी पकड़ के चलो, एक साल में मैंने डाल दिया। अभी एक एफडी के लिए पकड़ के चलते हैं कि मैंने आज, वो भी मुझे एक साथ मेरे पास अमाउंट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैंने 1 लाख लमसम डाल दिया एक साथ में। अभी आरडी वाला ऑप्शन अलग है, मैं बोल रहा हूँ एफडी का है। चलो एफडी का मैंने 1 लाख मैंने डाल दिया, अभी उसका वैल्यूएशन निकल के मैंने बोला था 6% एफडी है, तो मुझे कितना मिल रहा है? 1,06,000 आफ्टर 1 ईयर, राइट? यस यस नो? यस यस। ओके, तो 1,06,000 मुझे आफ्टर 1 ईयर मिल रहा है। तो अभी ये 1,06,000 में आपने टोटल इंटरेस्ट देखा कि अरे यार 1 लाख तो मेरे सेव है, प्लस मुझे 6,000 मिल गया। these are our traditional approaches which we are using for saving our money. Now in this case 1,06,000 में what is happening here? So you have not consider your inflation part. You have not consider your inflation part. Now what is mean by inflation? महंगाई सर, जो मतलब डे टू डे बढ़ती है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट रहता है, कुछ तो इन्फ्लेशन रेट रहता है, फिर बैंक के रेट्स रहते हैं, रेपो रहता है, रिवर्स रेपो रहता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट इसमें just to understand in simple words, let's say in order to run a family of 4 people, so let's say in order to run a family of 4 people, let's say what is the expenses I'm having in this month on an average। मैंने लास्ट ईयर का निकाल के देखा, ऐसे समझ के चलो कि लेट्स से आपको 30 के लगते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको कितना लगता है? 30 के, विदाउट इंक्रीजिंग यूर लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज, फैमिली मेंबर इंक्रीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बाय कीपिंग ऑल द फैक्टर्स एज कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट सोर्स एंड आपका लाइफस्टाइल, बाय कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स कांस्टेंट। आपको देखना है कि ये मंथ में कितना लगा और नेक्स्ट मंथ में कितना लगा, नेक्स्ट मंथ में कितना लगा, उसके नेक्स्ट मंथ में कितना लगा। अभी लेट्स से ये मंथ में मुझे 30 लग रहा है, नेक्स्ट मंथ में 35 लग रहा है, या एक साल में मुझे, ये स्टार्ट ऑफ ईयर में मुझे लास्ट ईयर का बेसिस पे मुझे पता चला था कि मेरा 30 के है, और नेक्स्ट ईयर में जब जा रहा हूँ तब मुझे ऑन एन एवरेज पता चला लास्ट 1 ईयर से कि भाई मेरा लाइफस्टाइल सेम रख के मुझे अगर मेरा फैमिली रन करना है तो मुझे कितना पैसा लग रहा है? अराउंड 35 के। अभी आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, नया मेंबर एड ऑन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी आपका कितना रनिंग अभी कितना चल रहा है? आपको कितना लग रहा है? 35 के। अभी ये 5 के कहाँ से आया? ये 5 के इज अ इन्फ्लेशन फॉर यू गाइस ऑन ग्राउंड लेवल। आपको बाय कीपिंग योर ऑल दी इनकम सोर्सेस कांस्टेंट, बाय कीपिंग ऑल योर आउटगोइंग सोर्सेस कांस्टेंट, एक्सपेंसेस आप उतना ही कर रहे हो जितना पहले कर रहे थे, लाइफस्टाइल कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ भी नया बड़ा आइटम नहीं परचेस कर रहे हो, टीवी परचेस नहीं कर रहे हो, फ्रिज परचेस नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ भी पहले जैसे था वैसे ही हम लोग रन कर रहे हैं। बाय कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स कांस्टेंट, मुझे ये महीने में कितना लगता था और नेक्स्ट मंथ में मुझे कितना लगता है। ये महीने में मुझे 20,000 लगा था, नेक्स्ट मंथ में मुझे 21,000 लगा। दैट मीन्स 1,000 इज अ इन्फ्लेशन व्हिच इज रनिंग इन द मार्केट। Making sense? On ground level, this is the concept of your inflation. Making sense? यस सर। यस सर। Yes, now just imagine कि 1 लाख मैंने आज इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद मुझे पता चला कि इन्फ्लेशन 6,000 से बढ़ गया, इन्फ्लेशन 6,000 से बढ़ गया। तो अभी अगर 6,000 का 6% का रेट है, ऐसे पकड़ के चलो, 4-5% तो एनीवे चलता है, तो लेट्स से अज्यूम करके चलो 6% का इंटरेस्ट रेट है। तो अभी 6% का इंटरेस्ट रेट है, आपने इन्वेस्टमेंट डाला था 1 लाख, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख का, सेविंग आपको मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है? 1,06,000। अभी
वो भी अगर आप ज्यादा बकेट में जा रहे हो तो वो भी टैक्सेशन लगेगा, वो भी छोड़ दो, ठीक है, टैक्सेशन भी 0 रखते हैं। 1,06,000 आपको मिलने वाला है, बट आपको तभी जाके पता चला कि भाई 6,000 मेरा मंथली इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो नाउ जस्ट टेल मी, आपका जो रिटर्न आ रहा है 1,06,000, वेदर इट इज इन पॉजिटिव और इट इज इन नेगेटिव। नो प्रॉफिट बैलेंस हो गया सर, 0 सर, बैलेंस। बैलेंस हो गया सर। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अभी ये तो मैंने बैलेंस वाला बताया। एक्चुअली जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, इफ यू आर सेविंग इन दैट अप्रोचेस, जो पोस्ट का एफडी करते हो या जो भी है, आपके जो भी आपको रिलायबल सोर्सेज लगते हैं आपको कि हाँ एसबीआई है रिलायबल है, कोई भी रिलायबल नहीं है, बट एसबीआई है, पोस्ट ऑफिस है, ये आप जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करते हो, आरडी करते हो, एफडी करते हो, बहुत सारे लोग ये जो लोकल में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पतसंस्था राईट, हाँ पतसंस्थामध्ये काय करतात ते, जास्त इन्व्हेस्ट डेली करतो. डेली हेच करतात सर, बेशी काय ते डेली म्हणतात ना, बेशी या पिग्मी असं काहीतरी म्हणतात ना ते. चीट फंड. बीसी सर हे सगळे अप्रोचेस मधून आपल्याला वाटतं की हा ठीक आहे आपण सेव्ह करतोय, आपण काहीतरी करतोय, पण मी सांगतो गॅरंटेड आपण जे इन्फ्लेशन आपण कधीच बघत नाही, आपण कधी पिक्चर मध्ये आणत नाही इन्फ्लेशन. आपण शिकलेले एज्युकेटेड लोक आहे, तर आपण इन्फ्लेशन पिक्चर मध्ये आणायचं. इन्फ्लेशन पिक्चर मध्ये आणून बघा तुमची जे इन्व्हेस्टमेंट आहे ती तुम्ही निगेटिव्ह आहे. तुमचे 1 लाख जे सेव्हिंग तुम्ही केलंय ते 1 लाखाच्या जागेला 95,000 झालेले, ते तुम्हाला समजणार पण. मेकिंग सेन्स. येस सर. मग आता हे इन्फ्लेशनला बीट करायला आपल्याकडे ऑप्शनच नाहीये, एकच ऑप्शन आहे म्युच्युअल फंड, राईट? हॅलो येस सर. येस सर. सर तुम्ही म्हणता बेशी मध्ये म्हणजे पटसंस्थामध्ये पैसे आपलं लॉस होते काय? लॉस होत नाहीये असं काही मी सांगत नाहीये. तुम्हाला दिसताना पैसे दिसतायत, तुम्हाला इन्कम येत आहे, पण ते तुमची स्वतःची लाईफस्टाईल आणि ह्या गोष्टी कन्सिडर केला तर ते एनिवे निगेटिव्ह जातं असं सांगतोय. रिटर्न कमी द्या कम्पेअर टू म्युच्युअल फंड. हा रिटर्न्स कमी आहेत. रिटर्न्स कमी आहेत म्हणजे रिटर्न्स तुमचे इन्फ्लेशन बीट करून तुमच्याकडे काहीच राहत नाही, असं म्हणतोय मी. समजतंय आणि का? सर म्युच्युअल फंड मध्ये वरती एएमसी म्हणून एक कन्सेप्ट होती, ती काय होती? एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला था मैंने, वो म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है उसको हम लोग एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं. आणि सर ही तुम्ही कशात स्क्रीन invest प्रेझेंट करताय? होतीये ना, दुसरे कोणते कॅल्क्युलेशन वाली नाही ना, कारण आम्हाला फक्त नोटपॅड दिसते. नाही मी कॅल्क्युलेशन नाही दाखवलं ऍक्च्युली. हा नाही ठीक आहे. दाखवलं. ओके ओके सर. आपण बघायला असेल त्यावरती कधीतरी तुम्ही बसू आपण कशात- वेगळं निवांत. तुम्ही कशात इन्व्हेस्ट करता सांगा की. तुम्ही कशात इन्व्हेस्ट करता आम्ही पण त्यात करू. नाईस नाईस. ठीक है, करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर अलग से. ठीक है, आई डू प्रेफर लॉन्ग टर्म इक्विटी, आई डू प्रेफर लॉन्ग टर्म इक्विटी. वही मैं आपको सिंपली सजेशन दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको. ठीक है, अभी तो ठीक है सर, जॉब लेते हैं उसके बाद चालू करते हैं, जो भी है मैं बता दूंगा कैसे करना है, कहाँ पे डालना है, क्या करना डेरिवेटिव म्हणजे काय? सॉरी डेरिवेटिव आहे ना, डीवाय डीएक्स डेरिवेटिव. ऊपर वाला बात कर रहा हूँ, आप नीचे जा रहे हो. ठीक है, ये इतना क्लियर है. म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन किसी ने नहीं पूछा कि इन्फ्लेशन बीट कैसे होता है. इसमें इन्फ्लेशन बीट कैसे होता है, इसमें कंपाउंडिंग का फैक्टर है, इसलिए इन्फ्लेशन यहाँ पे बीट हो जाएगा. क्योंकि आपका इन्फ्लेशन भी लगा तो इन्फ्लेशन भी जाके आपका जितना अमाउंट आ रहा है वो आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा कंपेयर टू योर नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोचेस, राइट? इन्फ्लेशन sir. कितना भी बढ़ जाए तो Yes, इन्फ्लेशन को yes. बीट करके कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपके हाथ में रहेगा. दैट्स व्हाई वी डू प्रेफर दिस वे. ठीक है, क्लियर है? येस सर. ठीक है, लेट्स टॉक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव पता है सबको? डी बाय डी एक्स. येस सर, मैथमेटिक्स वाला. येस सर. हाँ, इंटीग्रेशन, लिमिट, Yes, sir. डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन. यस कोई भी फॉर्मूला पूछो सर. हाँ, क्या होता है डेरिवेटिव बताओ. ऑप्शन होतं सर. Sorry? values derived from another value. ओके, क्या डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं? मैथ्स में आपने मैथ्स ने सीखा है, सबने मुझे पता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों ने मैथ्स में देखा होगा कि डेरिवेटिव कुछ तो होता है. क्या होता है? इंक्रीज सर. डिक्रीज होता है वैल्यू. डिक्रीज होते हैं. इनक्रीज होता है. नहीं, वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज का सवाल नहीं है. आप क्या होता है वो बताओ मुझे डेरिवेटिव में. वैल्यू Derivative डिराइव मध्ये करना होता है सर. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पार्ट सगळे सेपरेट करतात आणि इंटिग्रेशन मध्ये सगळे पार्ट एकत्र करतात. इंटिग्रेशन मध्ये एकत्र करता, डेरिवेटिव मध्ये डेरिव्हेटिव्ह मध्ये increase डेरिवेटिव इज अ पार्ट ऑफ अ शेयर मार्केट ना. नहीं ठीक है, वो तो मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ. आई जस्ट वांटेड टू हैव सम लेमन लैंग्वेज की डेरिवेटिव क्या होता है, उसके ऊपर तो आने वाले हैं हम लोग, यहाँ शेयर मार्केट में क्या होता है. बट एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होता है, वहां का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ला सकते हैं कि ये देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ट्राई कर.
Sir, no idea. Product having value deriving from तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये मीन पॉइंट करतात होता ना. मेन पॉइंट काढतो. ओके. कोणी पण मला करेक्ट जे पाहिजे ते आन्सर कोणी नाही देत नाही. सर फॉर्म्युला आठवतंय पण का करतो ते नाही आठवते आता. काय होता फॉर्म्युला? फॉर्म्युला बोला. deriving from an underlying variable asset. फॉर्म्युला काय होता? X derivative is called as 2x. Same ठीक है. idea. d by dx of x square क्या होता है? 2x 2x होता है. 2x क्यूब. क्यों? सर उसका फॉर्मूला है सर वैसे. Value are increase. हाँ? फॉर्मूला है सर उसका. क्या फॉर्मूला है? सर वो बाउंड्री पे पास हो गया सर एक बार कैसे तो करके पास हो गए, फिर से क्यों ना ला रहे उस चीज को. ठीक है, जाने दो. Derivative is an expression U representing into the V, rate U of upon change. V. ठीक है, जाने दो. जस्ट डेरिवेटिव उसका नाम में देखो, हमने कभी सोचा भी नहीं Rate होता of change of क्या one है. quantity with respect to another quantity, sir. सॉरी. Rate of change of one quantity with respect to another quantity. This is the Yes, sir. definition of derivative. ओके. रेट ऑफ चेंज ऑफ One quantity Function. with respect One to another quantity. yes, correct. So rate of change of one particular entity with respect to the other entity, right? सर असं पण होईल का कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच ड्राइव्स इट वैल्यूज प्राइस फ्रॉम अंडरलाइंग. उसके ऊपर आना है सुमित, उसके ऊपर आना है अपने को. वो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स. आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग को इधर बात करना है. यस, दैट इज करेक्ट आल्सो. ओके. तो इन दिस केस लेट्स से डेरिवेटिव मतलब हम लोग जनरली बात करते हैं कि हाँ ठीक है सर, डी बाई डी एक्स लगाते हैं. इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाते हैं. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लोग बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का अपन लोग को वैल्यू देते हैं और उसके ऊपर वो फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट. तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, राइट. यस सर. ओके. तो मतलब हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन रहता है, उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उससे हम लोग कुछ नया चीज डिराइव करते हैं, और वो जब अपना निकलता है तो दिस इज व्हाट माय आंसर है, ऐसे करके हम लोग मार्क कर देते हैं, राइट. जो भी आप फॉर्मूला वगैरह लगा के, राइट. करेक्ट. आप क्या करते हो? ये ओरिजिनल चीज के ऊपर आप कुछ नया चीज डिराइव करते हो, राइट. यस. एक ओरिजिनल फंक्शन आपको दिया होता है, वो फंक्शन के हिसाब से हम लोग नया फंक्शन डिराइव करते हैं या नया वैल्यू हम लोग निकालते हैं. दैट इज द सेम थिंग वी आर डूइंग इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट्स एज वेल. डेरिवेटिव्स इज नथिंग बट व्हाट? डेरिवेटिव मतलब नाम में देखो, डिराइव समथिंग न्यू, न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ एग्जिस्टिंग. Create something new out of existing. That means my existing function is there. Out of that existing function, I'm creating some new entity, and that entity will be called as my derivative. Kyun? Why? Because I have my original function. By using the original function properties, I have created new function, and that's why it is coming into picture as a derivative. Now, in this case, the same thing I'll be applying in case of a capital markets as well. What are my existing functions I have available with me? What are the functions, existing functions? कि अभी देखो existing function मेरे पास क्या क्या है, मार्केट में अवेलेबल चीजें क्या क्या है. म्यूचुअल फंड है मेरे पास कमोडिटी है, मेरे पास करेंसी है, मेरे पास इक्विटी है, राइट. यस नो? यस सर. यस. मेरे पास ये एग्जिस्टिंग है, बना बनाया कुछ है, बना बनाया. ठीक है, एग्जांपल लेके पकड़ते हैं कि चलो एक इक्विटी है मेरे पास. तभी वो इक्विटी के हिसाब से हम लोग कुछ नया फंक्शन मार्केट में डिराइव करेंगे और लॉन्च करेंगे. उस चीज को हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव. मतलब क्या है जनरली, अभी इफ आई टॉक अबाउट डेरिवेटिव एज अ डेफिनेशन, कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट one kind of a asset available in the capital market which is derived from the existing asset, existing functionality, existing security, existing इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट में डिराइव करते हैं. उस डिराइव जो नया डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट है उस चीज को अपन बोलते हैं डेरिवेटिव. मतलब क्या है? आपका एग्जिस्टिंग बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग अंडरलाइंग एसेट हम लोग बोलते हैं. अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बना बनाया है, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, बट उसको उसके ऊपर रूल लगा के, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के, आई विल बी क्रिएटिंग सम न्यू entity, new security in the market, and that security I'll be calling it as a derivative. Making sense? Yes, sir. थोड़ा समझ में आया सर. ठीक है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं, थोड़ा सा बता के आगे निकलेंगे. खत्म. तो इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स, अभी देखो मेरे पास एक इक्विटी है. इक्विटी मतलब टीसीएस का स्टॉक है, राइट. टीसीएस ने स्टॉक दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक ने लॉन्च किया, हमने परचेस किया, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है. अभी ये स्टॉक के ऊपर जो बोलता है, लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंक एंड दिस पर्टिकुलर कंपनीज विल सिट टुगेदर एंड दे विल सी दैट कि हाउ वी कैन क्रिएट द डेरिवेटिव्स आउट ऑफ योर सिक्योरिटी.
how we can create a derivatives out of your securities so that we can have our investors attracted toward our company. हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देंगे मार्केट में. कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? बाय यूजिंग माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मेरे पास? इक्विटी है. सो टीसीएस का स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी है, तो वो टीसीएस का स्टॉक हम लोग फिर से मार्केट में लॉन्च कर देंगे बाय सम अप्लाइंग सम न्यू रूल्स. तो एग्जिस्टिंग स्टॉक यूज करके हम लोग नया रूल बना के उसके ऊपर हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देंगे, और उस मार्केट में जो सिक्योरिटी लॉन्च करेंगे उस सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव. मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का प्राइस है. अभी आप मुझे बताओ, जो नया सिक्योरिटी लॉन्च होने वाला है वो प्रॉपर्टीज किससे इनहेरिट करेगा? existing is equity. So now you may be aware about inheritance in your core Java. पता है inheritance क्या होता है? Yes, yes. Yes, sir. Parent child relationship. Original से yes. Yes, yes. ओके. तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है. तो पेरेंट क्लास के सभी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, राइट? Yes, yes. एंड ही कैन हैव हिज ओन प्रॉपर्टीज एज वेल. तो चाइल्ड क्लास में खुद के प्रॉपर्टीज प्लस जेनेटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट. So that is what the concept called as inheritance, right? Yes, no. Yes. Inheritance में क्या होता है कि पेरेंट के प्रॉपर्टीज हम लोग डिराइव करेंगे, फॉलो करेंगे चाइल्ड में. तो चाइल्ड क्या कर रहा है? चाइल्ड इज अ सब क्लास. तो सब क्लास क्या करता है? जनरली पेरेंट के प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. तो सेम थिंग वी विल बी डूइंग हियर एज वेल. जो आपके चाइल्ड बना रहे हैं हम लोग, ये जो चाइल्ड या डेरिवेटिव जो बन रहा है वो हम लोग एग्जिस्टिंग स्टॉक से बनाएंगे. और एग्जिस्टिंग का स्टॉक का जो प्राइस है, अभी लेट्स से टीसीएस का आज का 100 है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? टीसीएस का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. तो जनरली हम लोग डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज विच इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग अंडरलाइंग एसेट. कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय बोथ काउंटर पार्टी. दो काउंटर पार्टीज रहेंगे जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट जो हम लोग साइन करते हैं, और उसका कुछ एक ड्यूरेशन रहता है. आफ्टर दैट ड्यूरेशन योर कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एक्सपायर्ड. तो डेरिवेटिव जैसे है, इक्विटी जैसा ऐसा नहीं है कि इक्विटी मैंने परचेज किया मैं कभी भी बेच सकता हूँ या कभी भी मैं रख सकता हूँ. डेरिवेटिव में थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्जिस्टिंग एसेट. अभी एक्जिस्टिंग एसेट के लिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली वन एसेट राइट नाउ. बहुत सारे एसेट्स के साथ भी हम लोग बना सकते हैं, बट दिस एसेट लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एक्जिस्टिंग एसेट एज इक्विटी. तो लेट्स से टीसीएस का आज का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 100 रुपीज. यस नो? Yes. फॉर एग्जाम्पल डू नॉट कंसिडर कि हाँ जाके नेट पे देखो सर गलत बोल रहे हैं आप, वो नहीं. ठीक है. तो टीसीएस का लेट से आज का एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज. अभी मुझे ये डेरिवेटिव लॉन्च करना है मार्केट में. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? December, sir. December. ठीक है. So now I have created out of this 100 रुपीज. देखो ये 100 रुपीज मेरा आज का स्टॉक प्राइस है. तो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक एंड टीसीएस विल सिट टुगेदर एंड दे विल बी लॉन्चिंग न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ टीसीएस. टीसीएस के बिहाफ में दे विल बी क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू सिक्योरिटी इन द मार्केट. अभी वो सिक्योरिटी वो क्या बोल रहा है? डेरिवेटिव्स. अभी ये बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना है कि लोग आपके इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पे अट्रैक्ट हो, प्लस इन्वेस्टर्स आपके इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना के वो लोग पैसा कमाए. अभी ये पैसा कमाए, अभी जस्ट इमेजिन कि आई एम द कंपनी ओनर. मैं इन्वेस्टर्स का पैसा कमाने के लिए क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ? इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ. वो बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म डेरिवेटिव्स है. तो अगर मैं डेरिवेटिव लॉन्च कर रहा हूँ तो इन्वेस्टर्स का फायदा हो रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है? To increase the brand value. कंपनी का कैपिटल भी ग्रो होगा. कैपिटल राइज होगा. Yes, वैल्यूएशन अगर वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. ट्रांजैक्शन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा फंड साइज में ग्रोथ होगा, या मेरा टोटल जो कैपिटल है वो कैपिटल में ग्रोथ होगा. मेरा इन्वेस्टर्स मार्केट में बुक रहेगा और ऑटोमेटिकली मेरे प्राइसेस कहाँ पे जाएंगे? हिट करेंगे, राइट? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, परफेक्ट. नाउ इन दिस केस अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ठीक है टीसीएस का आज का प्राइस 100 रुपीज है. अभी आईबी क्या बोलता है? ठीक है टीसीएस फ्यूचर जनवरी. टीसीएस फ्यूचर जनवरी. अभी ये फ्यूचर जैसे मैंने बोला कि डेरिवेटिव का 4 टाइप होते हैं. एक फ्यूचर होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक ऑप्शंस होता है, और चौथा क्या होता है? स्वैप्स होता है. ठीक है. तो फ्यूचर फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स वी कैन क्रिएट. अब ये डेरिवेटिव्स मतलब हर एक डेरिवेटिव को हम लोग बोलेंगे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज व्हिच इज साइंड ऑन बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अंडरलाइंग एसेट. तो अंडरलाइंग एसेट क्या है? लेट्स से मेरा अंडरलाइंग एसेट है इक्विटी. तो लेट्स से इक्विटी से हम लोग कुछ नया चीज डिराइव करने वाले हैं. क्या चीज डिराइव करते हैं? चलो टीसीएस का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिराइव करते हैं
विच इज गेटिंग एक्सपायर्ड एट जनवरी। तो जनवरी वाला एक्सपायर होने वाला हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अभी ये बनाते वक्त जैसे हम लोग एक इक्विटी शेयर परचेस कर सकते हैं, वैसे हम लोग एक परचेस नहीं कर सकते। यहाँ पे यूजर को लॉट में परचेस करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला ये 100 का लॉट है, तो ये 200 का, ये 300 का, या जनवरी का भी 200 का बन सकता है, जनवरी का भी 300 का बन सकता है, फरवरी का भी 100 का बन सकता है, फरवरी का भी 300 का बन सकता है, मार्च का भी 100 का बनेगा, मार्च का भी 200 का बनेगा। तो लाइकवाइज वी विल बी लॉन्चिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अभी ये सिक्योरिटी हमने ये टीसीएस के एग्जिस्टिंग प्राइस के बेसिस पे हमने ये सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च कर दी। अभी ये जब लॉन्च करेंगे तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से आई एम द सेलर, मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस फ्यूचर जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट कितने में बेचेंगे। तो मैंने इसका प्राइस देख के रखा है, लेट्स एज्यूम दैट कि मैंने प्राइस दिया इसका 200 रुपीज। तो अभी ये 200 रुपीज मैंने पहले से डिसाइड करके रखा है, और ये कोई तो बंदा आके परचेस करता है। लेट्स से आशीष इज कमिंग एंड आशीष इज परचेसिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए क्या पे करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो अलग चीज है, बट जस्ट ऑन हाई लेवल हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, नाउ आशीष इज परचेसिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है कि ठीक है टीसीएस के मैं 100 शेयर परचेस करूंगा, कितने में, 200 में, या मैं पैसा देता हूँ 200 के लिए, और मुझे कब मिलेंगे, जनवरी में इसका डिलीवरी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तब जाके इसका डिलीवरी होगा। ठीक है, तो अभी जनवरी का जो 25 या 26 है वो जाके अपना लेट्स से एक्सपायरी है उसका। तो इन दिस केस आपका जब टीसीएस के एक्चुअल में 25 में जाएंगे तो उसका ओरिजिनल प्राइस तो एज गुड एज ये भी चेंज होता रहेगा 100 का। हमने ये प्राइस के बेसिस पे उसने 200 में हमने परचेस किया था। तो आई वाज सपोज टू गिव हाउ मच अमाउंट, 200 into 100 कितना होता है, 20,000 2000 कितना, 200 into 100 4 zeros 2 4 zeros कितना होता है, 20,000 राइट। नहीं सर 2 लाख होगा ना, 200 into सॉरी 20,000 20,000 now, yes. नहीं, दो के ऊपर 4 zeros आ गए ना, 100 से 2 zeros और 200 से 2 zeros राइट। ठीक है 20,000 मतलब आई एम एक्सपेक्टेड टू पे 20,000 टू दी ओनर, जिससे मैंने परचेस किया उसको 20,000 मैं देने वाला। अभी देखो ये मैं क्यों बना रहा हूँ, अभी ये मैंने मुझे पता है 100 में मिल रहा है, फिर भी मैं 200 में परचेस 200 में मैं फ्यूचर वाला परचेस करने के लिए एग्री कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अपकमिंग इसके प्राइस बढ़ेंगे, ऐसा कुछ रहेगा सर। तो मैं बायर हूँ तो मुझे लगता है कि ये 100 में है, मुझे पता है आगे जाके 300 होने वाला है जनवरी में, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 200 का एग्रीमेंट अभी परचेस करके लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है 200 में मैं परचेस करता हूँ, एट द डे ऑफ एक्सपायरी जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस टाइम पे आपका प्राइस चल रहा है, लेट्स से एज्यूम करके चलो 300 चल रहा है, मैंने कितने में परचेस करने के लिए एग्री किया था, 200 में। तो मुझे कितने में मिलना चाहिए वो सिक्योरिटी, सेम 200 में 200 में मिलना चाहिए। दैट मींस वो 200 में से लेके मैं करंट ओपन मार्केट में अगर 300 में चल रहा है तो उसको लेके मैं बेच सकता हूँ वहां पे, राइट सर। यस नो, Yes, sir. थोड़ा सा समझ रहा है, ओके। Yes. अभी इसी केस में एज्यूम करके चलो कि ये 100 का जो था 150 पे अटक गया और आपने बोला था 200। जब आपका जनवरी में एक्सपायरी के डेट पे आपका जो है, उसके पहले भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर बेच सकते हैं, बट हम लोग एक्सपायरी पे बात कर रहे हैं अभी। तो लेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 26 जनवरी में, और आपका प्राइस है 150, आपने कमिट किया था 200। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 200 में लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। अभी उसमें डिपेंड्स अपॉन यूर सिक्योरिटी टाइप, फ्यूचर है या ऑप्शन है या फॉरवर्ड है, उसके बेसिस पे आप डिफॉल्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपके पास वो बेच सकते हो नहीं बेच सकते, उसके ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का फंडा होता है उसमें। बट अभी इन दिस केस अगर आपका 150 जा रहा है, सिंपल मुझे अगर लेना भी है तो मुझे कितना, उतना ही पैसा देना पड़ेगा। मार्केट में कितने मिल रहा है 150 में, मुझे कितना पैसे देके परचेज करना पड़ेगा 200 में, राइट। यस सर 200, क्योंकि मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना था भाई कि मैं ये जाके आगे जाके परचेस करने वाला हूँ, राइट। ये सब कुछ मैंने क्यों बनाया था यहाँ पे, प्रॉफिट के लिए, फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स सर एंड इन नहीं ऑर्डर नहीं टू नहीं, ये रेज मैंने इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर मैंने क्यों किया था, ये वो तो प्रॉफिट के लिए पता चला सर, मुझे, तो प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट। हाँ। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना एक्चुअल गैम्बलिंग, यहाँ पे एक्चुअल गैम्बलिंग वो इक्विटी मार्केट तो वो ठीक है, वहाँ पे इंट्राडे ये वो चलता है, नॉर्मल है वो। बट एक्चुअल गैम्बलिंग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सट्टा लगा रहे हैं कि भाई ठीक है इसके प्राइस के ऊपर अप डाउन हो रहा है, उसके ऊपर मैं सट्टा लगा रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द जनरली डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका एग्जिस्टिंग प्राइस को देख के आगे वाला प्राइस प्रेडिक्ट किया, और वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे
कंपनी ने जो सिक्योरिटीज लॉन्च की उसको मैंने परचेस किया। अभी ये परचेस करते हो मुझे कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉसेस होंगे, राइट। अभी ये जो डेरिवेटिव, इतना समझे डेरिवेटिव्स क्या है? Yes, sir. यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि उसका सिक्योरिटी का नाम क्या हो सकता है, बट वो सिक्योरिटी का नाम जब दे रहा है टीसीएस फ्यूचर जनवरी 100 दे रहा है, दैट मींस उसके बेसिस पे आपने अभी देखो यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग टीसीएस के स्टॉक के बेसिस पे ही ये सब कुछ डेराइव हो रहा है, दैट्स व्हाई वो टीसीएस का नाम है उसमें। अभी ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट रहेगा, फिर एक्सपायरी पे ऊपर अपने पास राइट्स रहेंगे, ऑब्लिगेशन रहेगा, वो बहुत सारे फंडे हैं बेस्ड अपॉन योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फॉरवर्ड्स रहते हैं, अपने फ्यूचर्स रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। So in this case, sorry, IB means what? Investment bank. investment bank. So ठीक है, तो different types of securities will be launched by the TC on behalf of TCS by the investment bank in the market and people will be purchasing it. जैसे इन्वेस्टर्स है, हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, तो मुझे पता है इसमें ये लगाएंगे तो पैसा मिलेगा, इसमें नहीं लगाएंगे तो पैसा मिलेगा। तो likewise based upon your existing underlying asset we are creating new securities and that securities are traded in the market. Now whenever we trade in the derivatives we always trade in the lot sizes. तो आपका लॉट साइजेस उन्होंने जो डिफाइन किया, आई कैन नॉट से कि 100 से 50 निकालो, 50 निकाल के दे दो मुझे, अरे उसको पैकेट को फोड़ो और वो 50 निकाल के दे दो, 50 आपके पास रखो, आई कैन नॉट से, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसेट, वो एज इट इज मुझे परचेस करना पड़ेगा, लेना है तो ले लो नहीं तो जाओ, राइट। तो इन दिस केस 100 200 300 जो भी है वो कंपनी जो बना रही है उसके हिसाब से हम लोग कभी कभी ये नाम में उनका प्राइस भी देखते हैं कि हाँ ठीक है उसका प्राइस 100 चल रहा है तो 200 प्राइस देते हैं, या जो भी है डिपेंड्स अपॉन कंपनीज क्राइटेरिया। वो लोग अपने सिक्योरिटीज बनाते हैं मार्केट में, हम लोग जाके उसको परचेस करते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हम लोग वी आर एग्रीइंग दैट कि वी विल बी परचेसिंग दिस सिक्योरिटी एट सर्टेन ड्यूरेशन एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, दोनों एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट हम लोग को फुलफिल करना होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। Before that as well I can sell that agreement to another person by giving the whatever cost I have paid earlier, तो उस cost लेके मैं दूसरे को भी सेल कर सकता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इक्विटी मैंने शेयर लेके रखा है, डायरेक्टली मैं जाके 9 साल के बाद क्लेम करने वाला, या उसके पहले भी मैं जाके किसी और बंदे को बेच सकता हूँ, वैसे ही इसका भी ट्रेडिंग वैसे ही हो सकता है। Now in case of this derivatives we have options called 4 types as forwards, options, futures and swaps. ऑप्शंस में 2 टाइप होते हैं, कॉल एंड पुट। ऑप्शंस में 2 टाइप होते हैं, कॉल एंड पुट। उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या होता है, एक्चुअली डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो बात करना चालोगे तो इक्विटी भूल जाओगे, ठीक है। जस्ट वन कंसेप्ट आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन, हेजर्स एंड स्पेक्युलेटर्स, ठीक है। जनरली ये डेरिवेटिव मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को हम लोग जनरली बोलते हैं हेजर्स एंड स्पेक्युलेटर। अनदर टाइप इज आल्सो देयर बट वो अभी इसके लिए काम के लिए नहीं अपने। ये हेजर्स क्या होता है, स्पेकुलेटर्स क्या होता है, एनीवन नोज अबाउट इट? व्हाट इज मीन बाय हेजर एंड व्हाट इज मीन बाय स्पेकुलेटर्स, एनीवन? सर हेजर जो होते हैं जो स्टॉक की प्राइस रहती है वो मतलब अप एंड डाउन करने के लिए स्टॉक सर हेज इसलिए करते हैं कि जब हमारा स्पेकुलेशन गलत हो जाए तो लॉस कम हो जाए। स्पेकुलेशन मतलब वन डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि इसी डायरेक्शन से मार्केट जाएगा, बट हेजर को अगर उस डायरेक्शन में नहीं जाता तो लॉस कम करने के लिए हेजर यूज कर सकते, हेज करते हैं हम पोजीशन। Okay, yes, correct. Any other thoughts? Hedgers try to reduce the risk. Sorry? Hedgers try to reduce the risk. Hedgers try to reduce the risk. Okay, perfect. And other one? आणि स्पेक्युलेटर्स आहेत ते प्रॉफिट्स म्हणजे प्रॉफिट कडे जास्त लक्ष देतात, म्हणजे एनी हाव ते मार्केटच्या मुवमेंटच्या अगेन्स्ट जाऊन ते प्रॉफिट कडे लक्ष देतात. Okay, perfect. So speculators and hedgers are the 2 types of investors available in the derivatives market, wherein speculators try to take the risk in order to get the more and more profit. Speculators का ऐसा होता है कि मुझे रिस्क लिया तो भी चलेगा बट मुझे प्रॉफिट चाहिए, that is what their expectation is there. Hedgers का कैसा है,
हेजर्स बोलते हैं कि ठीक है प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट इज ओके, बट इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आई विल बी मिनिमाइजिंग माय रिस्क। अगर कोई भी ऑर्डर मार्केट में चल रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए दे विल बी टेकिंग ऑफसेटिंग पोजीशंस। ऑफसेटिंग पोजीशन मतलब मैं किसी ऑर्डर का बाय भी डालूंगा और किसी ऑर्डर का सेल भी डालूंगा, सो दैट बाय और सेल में मेरा अगर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है या लॉसेस भी होते हैं तो वो कम से कम हो, प्रॉफिट या लॉसेस जो भी है कम से कम होना चाहिए। नाउ हेजर्स आर रिस्क मिनिमाइजिंग पीपल, स्पेकुलेटर्स आर रिस्क टेकिंग पीपल। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्क लवर। रिस्क लवर मतलब क्या है? ये लोग रिस्क लेते हैं इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ज्यादातर मार्केट का मूवमेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है अपवर्ड ज्यादा अपवर्ड जा रहा है या ज्यादा डाउनवर्ड जा रहा है, उससे वो लोग पैसा कमाते हैं स्पेकुलेटर्स। बट हेजर्स का क्या है? एक डायरेक्शन में अगर मूव करने लगता है तो वो दूसरे डायरेक्शन में अपसेटिंग पोजीशन लेते हैं सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर पर्टिकुलर रिस्क। तो उनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज करने के लिए हेजर्स उनका रिस्क मिनिमाइज करने के दे टेक दी ऑफसेटिंग पोजीशंस। ऑफसेटिंग पोजीशंस मतलब जनरली मैंने बाय डाला है तो उसका ऑपोजिट सेल भी डालूंगा सो दैट दोनों ऑर्डर मेरा बैलेंस होके मेरा प्रॉफिट या लॉस ज्यादा ना हो, मतलब लॉस ज्यादा ना हो। उनका मोटो वो होता है कि लॉस ज्यादा ना हो, वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर लॉस ज्यादा नहीं हो रहा है दैट मीन्स आप ये भी समझ के चलो उसके साथ प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। So ये हेजर्स मतलब सर इन्वेस्टर ही होते हैं या कोई रेगुलर नॉर्मल इन्वेस्टर्स। हेजर्स मतलब जो रिस्क मिनिमाइज करने वाले हैं। रिस्क मिनिमाइज मतलब मार्केट का जो अप एंड डाउन चल रहा है प्राइस मूवमेंट से बचे रहते हैं लोग, कि प्राइस मूवमेंट से मुझे नहीं चाहिए भाई, वो प्राइस मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे, जो नॉर्मल शांति से जितना मिल रहा है उतना लेके मैं आराम से करता हूँ। दैट इज व्हाट द हेजर्स पीपल आर। स्पेकुलेटर्स ठीक है भाई मुझे ज्यादा उतार चढ़ाव चाहिए सो दैट मैं उससे पैसा कमाता हूँ, दैट इज द स्पेकुलेटर्स, राइट? ओके सर, लाइक एक काइंड ऑफ जो ट्रेडिंग मेंटेलिटी है उसको डिफाइन करता है। यस ट्रेडिंग मेंटेलिटी, विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स यू आर, ऐसे। ठीक है, क्लियर है हेजर स्पेक्युलेटर्स? बाय आणि सेल दोघंही एकाच वेळी कसे चालू शकतात, म्हणजे एकाच शेअरवर करायचं एक वेगळ्या शेअरवर? आवाज ब्रेक होतोय तुमचा, आवाज ब्रेक होतोय। बाय आणि शेअर्स म्हटलं एकाच गोष्टीवर एकाच शेअरवर होतात की वेगवेगळ्या गोष्टी? नहीं मला समझ में आया क्वेश्चन। सर उनका बोलना ऐसा है, ब्रेक हो रहा है, आपकी साइड से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है शायद, ये माइक में कुछ तो गड़बड़ है मुझे। सर उनका बोलना ऐसा है कि बाय और शेयर एक ही शेयर, बाय और सेल एक ही शेयर पे होता है या अलग इस पे होता है, ऐसा पूछना है। कहाँ पे? Am I right, मैडम? हेडर में, हेजर्स में बोल रहे हो तो आप जिस सिक्योरिटी में आप ट्रेड कर रहे हो उसी सिक्योरिटी में करोगे ना आप। लेट से आप आईबीएम में चल रहा है आपका ट्रेडिंग, तो आईबीएम में आपको प्राइस वोलेटिलिटी आपको नहीं चाहिए तो आप बाय भी डालोगे सेल भी डालोगे उसी सिक्योरिटी में, तभी जाके पोजीशन आपके ऑफसेट होंगे और तभी जाके आपके प्रॉफिट और लॉसेस बैलेंस होंगे, राइट? यस ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको हेजर स्पेकुलेटर्स क्या है? यस सर। एंड टू बी ऑनेस्ट ये डेरिवेटिव्स हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, अगर बात करेंगे बट अभी के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर बात करना चालू किया तो आप इक्विटी वाला भूल जाओगे। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिकी है। वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर टाइप। शॉर्ट सेल बताया इसके पहले कभी? शॉर्ट सेल बताया क्या? नहीं सर। ठीक है, so from tomorrow onwards we'll start with the order types. ऑर्डर टाइप में कौन कौन से ऑर्डर हम लोग डालते देखते हैं, ठीक है चलेगा। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस नहीं है ना? ऑल गुड? यस सर ऑलमोस्ट। सर कितना बाकी है सर? प्रोजेक्ट कितना बाकी है? कितना बाकी है मतलब कितने दिन चलेगा ऐसा? तो कितने दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा सर। इक्विटी होल्डर आणि शेअर होल्डर मध्ये डिफरन्स आहे ना काही? सेम, इक्विटी होल्डर एंड शेयर होल्डर इज नथिंग बट सेम, क्योंकि आई एम होल्डिंग स्टॉक होल्डर बोलते हैं, स्टॉक हम लोग बोलते हैं स्टॉक होल्डर मतलब वही है कि इक्विटी भी होल्ड कर रहा हूँ शेयर भी होल्ड कर रहा हूँ, वही है, क्योंकि तीनों के नाम एक ही है, इक्विटी शेयर एंड स्टॉक। सर पण ते
ते जे रतन टाटाची कंपनी आहे ना, आता सायरस मिस्त्री कोण आहे? इक्विटी होल्डर Sorry? की शेअर होल्डर? इकडे बोलताय का दुसरीकडे मागे बोलताय? तुम्हालाच बोलतोय सर. हा, काय बोलतोय? सर ते इक्विटी होल्डर त्याचं पर्सेंटेज असते का कंपनीच्या ओनरशिप मध्ये? हा, मग शेअर होल्डर वेगळा आहे ना सर? कसा वेगळा? ते एक तुम्ही सांगितलं होतं ना, कॉमन आणि प्रिफर्ड, कसं आहे का मग? नाही, वेगळं कसं आहे मला ते तरी सांगा. म्हणजे कसं सर? वेगळं इन द सेन्स मला काय म्हणायचं मला हेच नाही समजलं actually. म्हणजे कसं, एक समजा एखादी कंपनी आहे TCS समजा, आणि TCS मध्ये जे कंपनीमध्ये भागीदारी आहे ना, ते इक्विटी होल्डर आहेत का? ते मला आहे विचारायचं होतं. मी एक जरी स्टॉक परचेस केला तरी पण मी इक्विटी होल्डर आहे, एक जरी स्टॉक परचेस केला तरी पण मी शेअर होल्डर आहे. नथिंग बट अ सेम. मी तुम्हाला एक सांगितलं की इक्विटी, शेअर आणि स्टॉक हे तिन्ही गोष्टी एका लाईनला बघा तुम्ही. त्या तिन्ही गोष्टी वेगळ्या नाहीये तेवढं डोक्यात ठेवा. मग ते तुमचा एक समजा 10,000 मार्केटमध्ये एक 100 शेअर्स मार्केटमध्ये आहे समजा, आणि तुमच्याकडे 10 शेअर्स आहेत, तुमची पर्सेंटेज पार्टनरशिप किती झाली? 10%. म्हणजे मी तुमचा मी पार्टनर झालो ना, काइंड ऑफ. तसंच आहे. मग आता त्यांचे शेअर्स भरपूर असतील, आपण 1 शेअरनी काय होणार आहे, त्यांना 0.001 कुठेतरी आपण असेल, पण दॅट पर्सेंटेज पार्टनरशिप आय एम होल्डिंग इन द TCS. दॅट इज व्हॉट वी आर सेइंग. येस. ते कॉमन आणि प्रिफर्ड तुम्ही म्हणले होते ना, त्याच्यामध्ये वोटिंग राईट्स राहतात त्यांना, ते डिफरन्स? कॉमन आणि प्रिफर्ड ते तर झालं ना कधीच. त्याचं काय? ते इक्विटी मध्ये येतात शेअर होल्डर मध्ये? कॉमन आणि प्रिफर्ड दोन्ही आता ते त्याचे टाईप आहेत म्हटल्यानंतर ते शेअर होल्डर आणि इक्विटी दोन्ही एकामध्येच येणार ना ते, असं का? इक्विटी, शेअर आणि स्टॉक म्हणजे एकच म्हणून सांगितलं मी, आणि त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे शेअर होल्डर आहेत म्हणून सांगितलं, 2 टाईपचे स्टॉक होल्डर आहेत, 2 टाईपचे इक्विटी होल्डर आहेत. तर तिन्ही वेगवेगळे करून सांगायची मला गरज नाही, कारण तिन्ही एकच पॉईंट आहेत म्हटल्यानंतर त्याचे दोन्ही जे टाईपचे जे परचेस करणारा जो कोणतं परचेस करतोय, कोणत्या मोड मध्ये तो परचेस करतोय, त्याच्या बेसिसवरती तो कॉमन शेअर होल्डर असेल या प्रिफर्ड शेअर होल्डर असेल. ओके. तर तिन्ही एकच आहेत हे डोक्यात ठेवा, आणि त्यानंतर कॉमन शेअर होल्डर आणि प्रिफर्ड शेअर होल्डर त्याचे सब टाईप. ठीक है, then I guess we can stop here. ठीक है, अभी तक जितना हुआ है समझा सबको? Yes sir. And one thing for at least for batch 23 जिन्होंने एडमिशन फी कंप्लीट नहीं किया है, do not allow me to means just reject your what your availability in this session. तो वो थोड़ा सा देखो आप क्या है जिसका पेंडिंग है. मैंने आज तो अलाउ किया है, जिसका भी पेंडिंग है जो भी है, तो just clear it today. जो भी है, मुझे बार बार वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप देखो किसका जो पेंडिंग है, जो भी है किसका, नहीं तो फिर ये यहाँ से मैं रिमूव करूंगा, फिर आप बोलोगे सर रिमूव किया, ये चीजें नहीं चाहिए. ठीक है, ओके, then I guess we are good for today. Thank you so much guys, have a great day, bye bye. Okay sir, bye, have a great. Yep, bye.